Shalom everyone and welcome to Rise of the Joshua Generation. सलोम, सभी को यहोशू पीढ़ी का उदय में स्वागत है। I'd like to thank you for your wonderful fellowship and your prayers. आपकी अद्भुत संगति और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। God is preparing a very, very special generation of people in the end times. परमेश्वर अंत के दिनों में एक विशेष लोगों को तैयार कर रहे हैं। They are some of the choicest people that God had to send in the world for such a time as this. वो एक विशेष चुने हुए लोग हैं जिसे परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए इस धरती पर भेजा है। And this is the best news, यही सबसे अच्छा खबर है that you and I are living in such a times. क्योंकि आप और हम ऐसे ही समय में जी रहे हैं। This was a time ordained by God even before the foundations of the world. इस समय को परमेश्वर ने अलग किया था इस धरती के नींव रखने से भी पहले। Even your birth was foretold in the foundations of the world. आपके जन्म के बाद भी धरती के नींव रखने से पहले ही ठहरा गया था। That's why you are alive in this generation. इसीलिए आप इस पीढ़ी पर जीवित है। What better thing than to understand God's plan and purposes for our times? हमारे समय में परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना को जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। We have been learning about the tabernacle हम पवित्र निवास स्थान के बारे में अध्ययन कर रहे थे and about how the flesh should die. और कैसे शरीर या देह को मरना है। Jesus, while he was on this earth, walked the same journey. प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे उन्होंने भी यही यात्रा करी थी। In the same way, he has invited you and I to walk in that same journey. उसी प्रकार उन्होंने भी आपको और मुझे बुलाया है यही यात्रा पर चलने के लिए। The Bible says, बाइबल कहता है if you suffer with him, अगर आप उनके साथ दुख उठाते हैं you will also enter into the same glory like him. तो उनके जैसे ही महिमा में आप भी प्रवेश कर पाएंगे। Why these trials and tribulations and challenges in our life? क्यों हमारे जीवन में इतना ज्यादा परीक्षा, सताव और चुनौतियां आता है? You know why this planet Earth was created? क्या आप जानते हैं कि क्यों इस धरती परमेश्वर ने बनाए? Let me tell you one thing. मुझे एक बात को कहने दें। This is the only planet in the entire universe that God created a being after his own image and likeness. यही सारा ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ परमेश्वर ने अपने रूप में मनुष्य की सृष्टि करी है। In this immeasurable universe, इस असीमित ब्रह्मांड में billions of galaxies and planets. अरबों की संख्या में आकाश गंगा और ग्रह है। Let me tell you, God created this planet Earth for a very, very special purpose. मुझे बताने दें कि परमेश्वर ने इस ग्रह पृथ्वी को एक विशेष योजना के लिए बनाए हैं। This is the only planet where God created you. यही सिर्फ एक ग्रह है जहाँ परमेश्वर ने आपको बनाया है After his own likeness and image. उनके ही समानता में, उन्हीं के स्वरूप में। And let me tell you one more very, very powerful thing. एक बहुत ही सामर्थी बात मुझे आपको बताने दें। This is the only planet where God shed his own blood. यही एकमात्र वो ग्रह है जहाँ परमेश्वर स्वयं ने अपना लहू को बहाया। No other planet did he ever shed his blood. और कोई भी दूसरा ग्रह में उन्होंने अपना लहू को नहीं बहाया। This is the only planet where he did that. यही एक ग्रह है जहाँ उन्होंने ऐसा किया। Nowhere in this entire universe that God died for someone. इस पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ने किसी और के लिए अपना प्राण को नहीं दिया। But the earth is the only planet where God died for you and for me. पर पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ परमेश्वर आप और मेरे लिए मरे। You know why did he do that? आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? Why is earth a special place? पृथ्वी एक विशेष जगह क्यों है? Let me tell you one thing, my dear brothers and sisters. एक बात को मुझे कहने दिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। The capital of his kingdom उनके राज्य का राजधानी will be based on earth. इस पृथ्वी पर आधारित होगी। From earth, इस पृथ्वी से ही he will rule all the universe in the day to come. वे पूरे ब्रह्मांड पर आने वाले दिनों में शासन करने वाले हैं। I am talking about a physical kingdom. मैं एक प्राकृतिक राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ। That's why this earth has a special place. इसीलिए इस पृथ्वी की एक विशेष स्थान है। No other planet did the Holy Spirit cover during its creation. और कोई भी ग्रह को पवित्र आत्मा ने सृजना के समय ढका नहीं है। In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी की सृष्टि करी। But when God created earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, the Holy Spirit was hovering over the whole earth. पवित्र आत्मा पृथ्वी के जल के ऊपर मंडराता था।
I imagine the earth like an egg मैं कल्पना करता हूँ कि पृथ्वी मानो एक अंडे के समान है, and the Holy Spirit like a dove covering her egg. पवित्र आत्मा इसके ऊपर मंडराता हुआ मानो इसे ढक रहे हैं। That's exactly what God did. ऐसा ही वास्तव में परमेश्वर ने किया, Because the earth was a special place क्योंकि पृथ्वी एक विशेष जगह थी and the Holy Spirit was hovering over the earth. और पवित्र आत्मा इसके ऊपर मंडराते थे। In the darkness, God created earth. अंधकार में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करी। And then after He created, He said, सृष्टि के बाद उन्होंने कहा, let there be light. उजियाला हो। And out of it came a beautiful earth. फिर एक सुंदर पृथ्वी निकल आया। Why did He create this special place? उन्होंने इस विशेष स्थान की रचना क्यों करी? This earth is the only planet in the entire universe where God wants to raise up His sons and daughters. इस पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सारे ब्रह्मांड में जहाँ परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को बड़ा करना चाहते हैं। That's why this earth is a training ground for raising up the sons and daughters of God. इसीलिए यह पृथ्वी एक प्रशिक्षण या तालीम का केंद्र है जहाँ परमेश्वर के बेटे बेटियां प्रभु में बढ़ने का तालीम पाते हैं। What will these sons and daughters do? ये बेटे बेटियां क्या करते हैं? Well, they will grow up वे बड़े बन जाएंगे as family of God. प्रभु के परिवार के रूप में। They will be raised up in His household. वे उनके घराने में बड़े हो जाते हैं And just like Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के समान they will do things that will please God. वे ऐसा कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। They will do things that God wants them to do. वे ऐसा कार्य करते हैं जो प्रभु उनसे करने को कहते हैं। They will do exactly what Jesus tells them to do. वे वही कार्य करते हैं जो यीशु मसीह उन्हें करने को कहते हैं। They will do nothing on their own. वे अपने आप सोचकर कुछ भी नहीं करते हैं। They will only do what they see their father doing. वे सिर्फ उसी के कार्य को करते हैं जो अपने पिता को करते हुए उन्हें देखते हैं। John 5:19 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 19वां वचन कहता है, So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। So in order to do the things that the Father does, पिता जो कार्य करते हैं वो कार्य करने के लिए these sons and daughters have to be trained. ये बेटे बेटियां को प्रशिक्षित होना है। They must be trained to see what the Father is doing. उन्हें यह सीखना है कि कैसे पिता परमेश्वर को देखना है कि वे क्या करते हैं। They must be trained to walk like the Father. उन्हें पिता के समान चलने को सीखना है। They must be trained to talk like the Father. उन्हें पिता के समान बात करने को सीखना है। They must be trained to think like the Father. उन्हें पिता के समान सोचने की बात को सीखना है। They must be trained to act like the Father. उन्हें पिता के समान व्यवहार करने की बात को सीखना है। They must be trained to be victorious like the Father. उन्हें पिता के समान विजेता बनने की बात को सीखना है। They must be trained to endure hardships like Jesus. इस मसीह के समान उन्हें कठिन समय में धीरजवान होने को सीखना है। They must be trained to carry their cross and follow Jesus every day. उन्हें अपना सलीब उठाकर हर दिन यीशु मसीह का अनुसरण करने को सीखना है। They must be trained not to look to the left or to the right. उन्हें यह सीखना है कि दायां और बायां नहीं देखना है। They must be trained to endure hardships. मुसीबत के समय का सामना कैसे करना है उन्हें यह सीखना है। Now you know why hardships come in a believer's life. क्या आप जानते हैं कि एक मसीह के जीवन में क्यों कठिन समय आता है? Because this earth is the only place क्योंकि यह पृथ्वी सिर्फ ऐसी जगह है where you'll face the right amount of temptation, जहां आपको परीक्षा का सामना करना होगा, सही माप की परीक्षा को, the right amount of trials, सही माप की परीक्षा को, the heartaches, दिल में लगने वाली बात, the pain, पीड़ा, the suffering, तकलीफ, loneliness, अकेलापन, betrayal, धोखा, the tears, आंसू, the tribulation, सताव, everything हर एक बात that you face on this earth जिसकी आप इस धरती पर सामना करते हैं are the objects and subjects of training, ये सभी इस प्रशिक्षण या तालीम की सर सामग्री है, so that you can develop to become the sons and daughters of God. ताकि आप परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां बनने पाए। Now, why does God wants us to go through all this? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे अनुभव से गुजर जाएं? The word says,
वचन कहता है, Romans chapter 8 verse 19. रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 19वां वचन, For the creation awaits with eager longing for the revealing of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट को जो रही है। Just like the Holy Spirit covered the whole earth जैसे पवित्र आत्मा द्वारा पूरा पृथ्वी ढका गया, before the earth was created, इस पृथ्वी के सृष्टि से पहले there was darkness hovering over the earth. पृथ्वी अंधियारा में व्याप्त था। Everything was done in secret. हर बात रहस्यमय ढंग से होता था। And then suddenly God shouted, अचानक परमेश्वर ने कहा, Let there be light! उजियाला हो, And there was light. फिर वह प्रकाश से भर गया। In the same way, उसी प्रकार से ever since God created a being after his own image and likeness, जब से परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिरूप में किसी को बनाया, and that being is you, और वो व्यक्ति आप है, the creation has been waiting सृष्टि इंतजार कर रहा है that how you will develop into being what God wants you to be. कैसे आप विकसित होंगे जैसा परमेश्वर आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। It says the entire creation is waiting. यह कहता है कि पूरी सृष्टि इंतजार कर रहा है, Not just waiting, but with earnest expectation. सिर्फ इंतजार ही नहीं, बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ। Whenever a child is born on this earth, जब इस धरती पर एक शिशु का जन्म होता है, the entire universe waits पूरा ब्रह्मांड इंतजार करता है to see what destiny that child has brought into the universe. उस शिशु ब्रह्मांड के लिए क्या नियति को लेकर आया है। That's why every child is a gift of God. इसलिए हर कोई बच्चा परमेश्वर का उपहार है। You are God's package for the universe. आप इस ब्रह्मांड के लिए प्रभु का पैकेज उपहार हो। You were shipped by God. आप परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं। Your life is a gift sent by God. आपका जीवन परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक उपहार है। And when that gift unfolds, जब ये उपहार को खोला जाएगा, this is extraordinary, my dear brothers and sisters. ये बहुत ही असाधारण है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। The entire creation is waiting. समूचा सृष्टि इंतजार कर रहा है। Not just waiting, but with earnest expectation. सिर्फ इंतजार ही नहीं, पूरी उम्मीद के साथ। Because ever since the fall of man, क्योंकि मनुष्य के पतन के बाद the entire creation is groaning. समूचा सृष्टि पीड़ा में करा रहा है। It is in pains ये पीड़ा में है because of the fallen man, गिरे हुए मनुष्य के कारण, because of the consequences of sin. पाप के नतीजे के कारण The entire creation is subjected to sin. समूचा सृष्टि पाप के अधीन हुआ। The creation is in agony. सृष्टि पीड़ा में आत्महत्या कर रहा है। It is in pain. ये पीड़ा में है। It's suffering for ages. ये युगों से दुख उठा रहा है। For many, many, many years, the creation is asking God one question. कई सारे सालों से सारे सृष्टि परमेश्वर से एक प्रश्न को पूछ रहा है। Lord God Yahweh, प्रभु यहोवा परमेश्वर, when will you reveal your sons and daughters to us? कब अपने बेटे बेटियों को हमसे प्रकट करेंगे? That's why when a man is born again in God's kingdom, इसलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, the entire creation waits in earnest expectation. समूचा सृष्टि बड़ी उम्मीद को लेकर इंतजार करता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, there is a waiting going on for you. आपके लिए इंतजार किया जा रहा है। This creation is waiting. यह सृष्टि इंतजार कर रहा है। Your life is unfolding. आपके जीवन प्रकट हो रहा है। Will the creation rejoice? क्या सृष्टि आनंदित होगा? Will the angels dance and sing? क्या स्वर्गदूत गाएंगे, नाचेंगे? Because you were born. क्योंकि आपका जन्म हुआ है। Glory to God in the highest, स्वर्ग में सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा हो, and on earth peace to mankind. और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वो प्रसन्न है शांति हो। That's what they sang when Jesus was born. यही गीत उन्होंने गाया था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। In the same way, उसी प्रकार when you are born into God's kingdom, जब प्रभु के राज्य में आप जन्म लेते हैं, the heavenly Father dances, स्वर्गीय पिता नाचते हैं आनंद से, the angels sing. स्वर्गदूत गाते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
You have come for such a time. आप ऐसे समय पर ही जी रहे हैं। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I see many sons and daughters' hearts being stirred right now. मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे बेटे बेटियों का हृदय द्रवित हो रहा है। As your word is being preached, जैसे आपका वचन प्रचार किया गया है, they are clearly beginning to see that they have not come in this earth just to earn a living. वे स्पष्ट रूप से ये जानने पा रहे हैं कि उनके इस धरती पर जन्म लेना सिर्फ जीवन गुजारने लायक कमाने का ही नहीं है। They have not come just to get some education, get married, have children and die. वे सिर्फ इस कार्य के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं कि पढ़ाई के बाद विवाह करें, बच्चे उत्पन्न करें और फिर मर जाएं। The entire creation is awaiting the revealing of this spirit life in them. ये समूचा सृष्टि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनमें आत्मा का जीवन प्रकट हो। And Jesus, you came to give life, प्रभु यीशु, आप जीवन देने के लिए आए, and life in abundance. बहुतायत का जीवन के लिए। Even right now, I pray for your sons and daughters. अब मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let your life overflow. आपका जीवन बहने पाए। Let the spirit begin to live in Jesus' name. आत्मा जीना आरंभ करे यीशु मसीह के नाम से। Let the works of the spirit manifest in their life right now. आत्मा का वचन उनमें इसी समय प्रकट हो। Let the works of the flesh be destroyed, शरीर का कार्य नष्ट होने पाए, so that they will begin to see the purpose and destiny why they are on this planet Earth. ताकि इस धरती पर रहते ही उन्हें अपना नियति और लक्ष्य देखने का मौका मिले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you are opening this packet right now. आप इस समय यह सामान को खोल रहे हैं। And even I see the heavenly host just surrounding you मैं देख पा रहा हूँ कि स्वर्गीय प्राणी आपको घेरे हुए खड़े हैं, in earnest expectation एक बड़ी उम्मीद के साथ, to see what God has sent upon this planet ये देखने के लिए कि परमेश्वर इस ग्रह को क्या भेंट दे रहे हैं। in the form of your sons and daughters who are born. आपके बेटे और बेटियों के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, Let their lives be a joy to you. उनका जीवन आपके लिए आनंद का कारण बनने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear Joshuas, मेरे प्रिय यहोशू, God is unpacking you. परमेश्वर आपको प्रकट कर रहे हैं। Till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless. प्रभु आपको आशीष दे।